So I'm so delighted to welcome you all on behalf of the Credestive family. So our program agenda is as follows. In the first half of our event, we will have a deep down into the realm of weight management session. Our expert speaker will share the wisdom on the same. And this session will be streamed live for everyone so that everyone can watch online. In the second half of our event, we will have a special treat for you. You will have the opportunity to engage in one-on-one consultation with our expert dietitians. So before we start off with our program, I would like to welcome the chief guest of our day. So I would like to extend a warm welcome to the expert guest. For this, I request Ms. Rekha Negi, the HR head, to present them with a small plant signifying growth and health to our dietitians. I call on Madam Nidhi Singh. Please give them a big round of applause. Madam Supriya Walia. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So ladies and gentlemen, now we are going to start with our live streaming. Please join me in welcoming the speaker of the day, Madam Nidhi Singh, an expert nutritionist specialized in bariatric nutrition, therapeutic nutrition, who will be sharing her insights on healthy lifestyle and weight management. Ma'am, we are so honored to have you. Thank you so much for warm welcome. Very healthy morning to all. Okay, so today we are talking about healthy lifestyle and weight management, right? So every day we are talking about the lifestyle. So what is the lifestyle actually? So let's begin with the first slide. So what is a lifestyle? So sounds like a very simple question, but it has lot more to do with everyone's life. It has a habit, attitude, purchasing power, your society, your peer group, your family, and your consumption that help to persuade your life further, right? So this is the lifestyle, and everybody falls with different lifestyle. Nowadays, lifestyle become a fashion, right? So we all are coming from the different family. We follow a different lifestyle. Income group is also coming under the lifestyle, right? So next, हम लोग रोज़ बात करते हैं ना कि what is the healthy lifestyle and what is the non-healthy lifestyle, and that lifestyle basically that is created by us only. कुछ लोगों ने अपने आप को बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल में अपग्रेड किया हुआ है, कुछ लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को बहुत डिटेरियोरेट किया हुआ है, बट फॉर देम वो लाइफस्टाइल इज़ नॉट अ बैड लाइफस्टाइल और दैट इज़ नॉट अ अनहेल्दी लाइफस्टाइल. सपोज इफ आपको पिक्चर्स बहुत सारी क्लियर कर रही हैं कि व्हाट इज़ द हेल्दी लाइफस्टाइल. सो योर ईटिंग पैटर्न, योर स्लीप पैटर्न, योर सोशल गैदरिंग्स जो आपकी होती हैं, जो आपका कंपनी है, दैट इज़ योर लाइफस्टाइल. आप किस कंपनी में फॉल करते हैं. यू आर डूइंग पार्टीज एवरी डे. एक बंदा है जो रोज़ पार्टी करना है जिसको, दूसरा है ही इज़ वेरी पंक्चुअल, ही हैज़ टू गो एट होम ऑन अ राइट टाइम, ही हैज़ टू हैव देयर फूड ऑन राइट टाइम. सो दैट लाइफस्टाइल इज़ बेसिकली क्रिएटेड बाय अस ओनली, राइट. सो अनहेल्दी और हेल्दी आप पिक्चर से एनालाइज कर सकते हैं कि वेयर यू फॉल, आपका लाइफस्टाइल इसमें से क्या है. आजकल के यंगस्टर्स दे आर फॉल विद द स्मोकिंग, drinking, and they are like, this is my lifestyle, and that is very much created by us. हमारा वर्क शिफ्ट, वर्क आवर्स, दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड, राइट, कि हमें नाइट शिफ्ट्स करनी है, दैट इज़ ऑल्सो आवर लाइफस्टाइल. वी डू हैव पेशेंस. जब हम उनको बोलते हैं जस्ट रेगुलेट योर स्लीप पैटर्न, जस्ट रेगुलेट योर डाइट, सो दे वर लाइक मैम हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है. कुछ हद तक 60 to 80% दैट लाइफस्टाइल इज़ क्रिएटेड बाय अस ओनली, राइट, बट वी आर ब्लेमिंग कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है. बट उसके पीछे कहीं ना कहीं 80 to 90% वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड दैट लाइफस्टाइल दैट इज़ क्रिएटेड बाय अस. आपका चॉइस है, स्मोक करने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है, बट हमें लाइफस्टाइल चेंज करना है. आपको लगता है स्मोकिंग विल अपग्रेड यू, नो. एक टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसके हेल्थ जो हैज़ार्ड्स हैं वो क्या हो सकते हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड,
What is lifestyle? Health problem that react to change in lifestyle. ठीक है, हमारा डाइट कंट्रोल नहीं है, हमारा स्लीप पैटर्न नहीं है, हमारा हाइड्रेशन लेवल हमको पता नहीं है, हमारे जो अदर हैबिट्स है लाइक टोबैको, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें ज़्यादा है. दैट मे लीड टू सम that will definitely lead some changes in your health. Maybe obesity, maybe hypertension in females, PCOS are very common, sleep distress, that is very much related to your change in lifestyle. Okay, or the next is disease that are caused partially by unhealthy behavior and partially by other factors. Other factors can be your hereditary, your genes, your metabolism, so many things, but the 50% is चेंजेस दैट इज़ मेंट बाय अस. हमारे पास, हम कहीं बाहर जाते हैं, हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, बट वी विल फोकस ऑन, हाँ थोड़ा आज फ्राई खा लेते हैं, या कुछ हमारे पास सैलेड्स भी रखा होता है सामने, हमारे पास कुछ फ्रेंच फ्राइज भी है, सैलेड्स भी है, तो योर ब्रेन फर्स्ट गो टू द फ्रेंच फ्राइज. सैलेड तो या स्प्राउट्स तो हम बाद में भी खा लेंगे. सो दैट लाइफ स्टाइल चेंजेस मेंट बाय अस. हमारा चॉइसेस मेंट बाय अस. वहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, वन इज़ हेल्दी, वन इज़ नॉन हेल्दी, बट योर ब्रेन विल फोर्स यू टू हैव दैट फ्रेंच फ्राइज फर्स्ट, राइट. टाइप्स ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेज. आजकल हम बहुत बात कर रहे हैं ना कि लाइफस्टाइल अच्छा रखो नहीं तो ये हो जाएगा, लाइफस्टाइल अच्छा रखो नहीं तो डायबिटीज़. आज इंडिया में यू कांट इमेजिन, एवरी सेकेंड पर्सन सिटिंग opposite to you is having diabetes or maybe obesity or maybe hypertension. 19 years old, 20 years old having hypertension. What is the reason behind that? That is lifestyle. Whether it's stress, आपने sleep अच्छी नहीं लिया है, आप over stressed हैं because of your studies, because of work pressure, anything. So this is the lifestyle, right? The first is heart disease, stroke, डायबिटीज़, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, क्रॉनिक, जिसको हम PCOD बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, दैट इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विद द स्मोकिंग, right? And some types of cancer, like if you are chewing tobacco, there is a cancer of buccal mucosa, oral cavities and all, right? So सबसे पहला जो हमको इफ़ेक्ट करता है लाइफस्टाइल डिजीज़ है, दैट इज़ ओबेसिटी. फर्स्ट ओबेसिटी विल कम, और अगर ओबेसिटी आ गया तो वो अपने सारे सिबलिंग्स को साथ में लेके आता है. एंड द सिबलिंग्स आर हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, स्लीप डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस, हाई ब्लड शुगर्स, इवन कैंसर्स, राइट. सो दिस इज द मेन लाइफस्टाइल डिजीजेस विच इज एसोसिएटेड विद द लाइफस्टाइल. एंड द नेक्स्ट इज what cause lifestyle diseases. So unhealthy lifestyle may be because of overeating, excessive consumption of fat, smoking, drinking, chewing tobaccos, sedentary lifestyle and lack of exercise. Always remember, अगर आपको obesity से बचना है या इन lifestyle से, I'm just talking about first obesity. So your input and output is very important. The calorie you are taking and the calorie you are burning, that is very important. तीन मोटा मोटा फंडा होता है. If you want to gain weight, then your calories expenditure should be less than calorie intake. If you want to maintain weight, then your calorie intake and expenditure should be on balance. If you want to lose weight, then your calorie intake should be lesser than calorie expenditure. ये तीन चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखना है. द सेकेंड थिंग इज़ ओवर ईटिंग. समटाइम्स क्या होता है, अभी मैंने खाना खाया है, आई हैड माई ब्रेकफास्ट, लेकिन मेरे सामने कुछ और अच्छा मिल गया, पेट में भूख नहीं है, योर स्टमी इज़ फुल, बट योर ब्रेन विल फोर्स यू टू हैव फूड, क्योंकि ब्रेन हंगर को कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम सब नहीं कर पाते हैं. और उसकी वजह से क्या होता है, ओवर ईटिंग. एंड फिर वो चेन है, फिर वो बनता चला जाएगा. ओवर ईटिंग होगा, इंडाइजेशन होगा, या ओबेसिटी आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी. सो फर्स्ट पैरामीटर आपको जो असेस करना है, दैट इज़ यू नीड टू कंट्रोल योर ब्रेन हंगर. अभी मैंने खाया है, दूसरा फ्रेंड्स आके बोलता है चल ना एक कप कॉफ़ी पी के आते हैं, फिर हम चले जाएंगे, लेकिन हम थोड़ी देर पहले खा के आ चुके हैं. तो आपको या तो यू से पोलाइटली से नो, कंपनी दीजिए, लेकिन अपने स्टमक को कंपनी मत दीजिए. आपने खाया हुआ है, आपने अपनी मील्स ली हुई हैं. सो ये ब्रेन हंगर को कंट्रोल करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
right? Lifestyle diseases mainly depends on two factors. One is controllable factors and one is uncontrollable factors. उसको कंट्रोल करना बहुत हद तक हमारे हाथ में होता है. कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज कंट्रोलेबल फैक्टर इज. आपको पिक्चर्स डिपिक्ट कर रही होंगी कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं. अपने आप को हाइड्रेट रखिए, फिजिकल एक्सरसाइज, साउंड स्लीप, गुड ईटिंग हैबिट्स, ये आपके हाथ में है, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, विच इज़ हेरिडिटरी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिजीजेस, वो आपके हाथ में नहीं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. सो 70 to 80% ऑफ द टाइम यू कैन कंट्रोल योर लाइफ स्टाइल डिजीजेस विच विल फर्दर इफेक्ट यू मोर, राइट. सो कंट्रोलेबल फैक्टर्स में अगर आपने अपने पोर्शंस कंट्रोल को अच्छे रखा, आपने अपना हाइड्रेशन मेंटेन किया, स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम वेट लॉस के लिए जाते हैं या हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए सिर्फ डाइट से वेट लॉस नहीं मिलता है. डाइट इज़ 50%, 30% इज़ योर रेस्ट and 20% is your 30% is your physical exercise and 20% is your rest. Peace of mind, sound sleep is very important, right? So हमेशा डाइट नहीं, आप डाइट कर रहे हो इनिशियली स्टेजेस में आपको थोड़े बहुत फ़र्क तो आ ही जाएगा, बिकॉज यू आर टेकिंग लेस कार्ब डाइट, बॉडी इज़ हैविंग समथिंग न्यू इन ऑन इट, तो डेफिनेटली थोड़े फ़र्क आपको नज़र आ जाएंगे. 2-3 kgs 4 kgs यू मे लॉस. आफ्टर दैट द वेट विल बी कॉन्स्टेंट, वो नहीं हिलेगा, बिकॉज अगर आप स्ट्रेस में हैं, रात को आप लंबा जगेंगे तो डेफिनेटली मंचिंग करेंगे, और मंचिंग वो हेल्दी तो होगी नहीं, राइट. तो हमारे बॉडी को रेस्ट चाहिए, एंड दैट साउंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं. लेट नाइट हम स्क्रीन्स पे लगे हुए हैं, स्क्रीन टाइम कम करना होगा, बिकॉज नाइट इज़ फॉर स्लीप. जो लोग नाइट शिफ्ट्स करते हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम सो मैनी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, राइट, बिकॉज सन एक्सपोजर नहीं है, एब्जॉर्प्शन नहीं है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, तो दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ चैलेंजेस. सो रात सोने के लिए बनी है, तो प्लीज़ अपना क्वालिटी स्लीप ज़रूर लीजिए. सो लेट्स टॉक अबाउट द डाइट. सो ईट फॉर हेल्थ एंड लिव अ हेल्दी लाइफ. सो व्हाट बुद्धा हैज सेड, to keep the body in good health is a duty, otherwise we shall not be able to keep our mind strong and clear. How many of you agree with this? राइट. घर से परेशान होके आए हैं, सब स्टमक ही अपसेट है, कितना आप अपना एफर्ट्स दे पाएंगे अपने काम में? बिल्कुल नहीं. एवरी आफ्टर 10-15 मिनट्स यू विल गो टू लू. कहीं पेन है, हाइपरटेंशन है, पिल्स का टेंशन है कि अच्छा अभी मेरे को ये पिल्स ले ली हैं, अच्छा मेरा अभी शुगर है, अच्छा अभी मेरे को बिफोर डाइट आई हैव टू टेक अ मेडिसिन. तो हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ रहता है? अपने चेक्स पॉइंट पे कि अच्छा मुझे अभी ये करना है. मुझे हम अपना काम में कितना % दे पा रहे हैं? हम घर से खाली पेट आए हुए हैं, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ है, बार बार दिमाग क्या सोच रहा है कि भूख लगी है, ब्रेकफास्ट करना है. सो वी आर नॉट एबल टू गिव 100%, राइट. कोई भी इलनेस विच इज़ एसोसिएटेड विद योर लाइफ स्टाइल will definitely affect your work, because you will not able to give your 100%. वेट ज़्यादा है, ऑफिस में घुसते ही किसी ने बोल दिया, या आपने पीछे से गॉसिपिंग सुन ली कि मेरे बारे में कुछ बात हो रही है, आई एम लुकिंग फैट, या आई एम लुकिंग जो भी है. थे बहुत ज़्यादा लीन होना भी अच्छी बात नहीं है, स्टिल पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, राइट. सो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो हाउ कैन यू गिव योर 100% टू द वर्क? 50 to 60% माइंड तो डिस्ट्रैक्ट वहीं हो जाएगा. So it is very important, and it is our duty to keep ourselves healthy. Your body should be healthy. So what is a balanced diet? हम बहुत balanced diet की बात करते हैं. What is a balanced diet? And nowadays one thing is trending, superfood. आपने सुना होगा superfood के बारे में, है ना? So do you think the really superfood जैसा कुछ exist करता है ना? Balanced diet means the combination of macro and micronutrient, right? The macronutrient is your protein, carbohydrate and fat, and the micronutrient is your all multivitamins and your all vitamins and minerals, whether it is A, D, E, K, iron, folic acid, vitamin D, B12. These are the micronutrient. So for us, for fuel, the first thing is important is macronutrient.
बगैर उसके आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रेंट तो बाद में आता है, फर्स्ट यू नीड मैक्रो न्यूट्रेंट। अब उस मैक्रो न्यूट्रेंट में कार्ब्स हैं, फैट हैं एंड प्रोटीन्स हैं। मैं कार्ब्स की बात कर रही हूँ, लेकिन हम आजकल तो लो कार्ब्स की बात करते हैं। लो कार्ब डाइट होनी चाहिए, लो कार्ब डाइट ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन नो कार्ब डाइट नहीं होनी चाहिए। there is a no diet is called low carb diet, because अगर आपको कोई इस तरीके की डाइट प्लान देता है कि we are giving you no very almost negligible carbs, that will not help you। उससे क्या होगा, because carb is a source of fuel in the body। carbs ही आपको एनर्जी दे रहे हैं to work for energy you need carbohydrate। zero carb will lead you in the position of कीटोएसिडोसिस। उसमें क्या होता है, आपके जो फैट हैं वो बर्न होंगे एंड दैट विल गिव यू एनर्जी, फ्यूल। और जब आपका फैट ब्रेक डाउन होगा सो दैट विल रिलीज कीटोन्स इन योर यूरिन एंड ब्लड, राइट। तो ज़ीरो कार्ब जैसा कुछ भी नहीं होता है, राइट। एंड जो हमारा प्लेट है 50 to 60% ऑफ द कैलोरीज इज कमिंग फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। लेकिन हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा कि व्हाट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट आई शुड टेक, राइट। तो आपके पास शुगर्स भी, आपके पास शुगर कैंडी है, फ्रूट है और फ्रूट जूस है, तो आप क्या चूज़ करेंगे? वेरी गुड, राइट। तो आपको अपना कार्ब्स जो चूज़ करना है, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट, राइट। सो फर्स्ट एनर्जी विल कम फ्रॉम द कार्ब्स, नेक्स्ट इज प्रोटीन, अनदर वन इज योर फैट। तो हमारे डाइट में सबसे ज़्यादा स्पेस, सबसे कम स्पेस हमें देना है फैट एंड शुगर्स को, right? So a nutrient which contains different types of food possessing the nutrient carbohydrate, proteins, fat, minerals and water in a portion that meets the requirement of the body। If we are talking about hydration and water, समर्स आते ही हम सबकी जो फ्रिज है वो फुल हो जाती है, रसना, टैंग, रूह अफ़ज़ा। डू यू थिंक दीज आर द हेल्दियर थिंग्स फॉर यू? सबके घरों में होता होगा, आई मस्ट से। समर्स आती सबकी फ्रिज ये तरीक़ों के ड्रिंक से फुल हो जाती है। डू यू थिंक दीज आर द हेल्दी फॉर यू? दीज ऑल आर शुगर सिरप, सिंपल कार्ब, सिंपल शुगर्स दैट विल लीड ओबेसिटी, राइट। तो अगर आपको हाइड्रेशन रखना है, आपको अपना वाटर इनटेक फिल रखना है, तो सबसे पहला चॉइस आपका होना चाहिए वाटर। द मोमेंट यू फील आई एम नॉट एबल टू टेक मच वाटर, मुझे पानी नहीं पिया जाता है, the next option can be soups, and that is very homemade soup। ऐसा नहीं कि आप नॉर्स के पी रहे हो, that is loaded with the salt, right? So छाछ ले लिया, बटर मिल्क, right? कोकोनट वाटर ले लिया, लेमन वाटर ले लिया, ज़ीरा वाटर ले लिया, these are the, या फिर आपने इन्फ्यूज़्ड वाटर ले लिया। आजकल फैशन चल रहा है इन्फ्यूज़्ड वाटर का। आपने फ्रूट्स या वेजीज़ को इन्फ्यूज़ कर लिया, वेदर इट इज़ क्यूकम्बर, ऑरेंजेस, आपने बॉटल में पीसेस डाल के रख लिया, आपने उसको फिल कर लिया। थ्रू आउट द डे टेक इन्फ्यूज़्ड वाटर, दैट विल कीप यू हाइड्रेट एंड डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, राइट। And why balanced diet is important? So because body organ and tissue need proper nutrition work effectively. The nutrition is a journey of life. Agree or not? आप अग्री करते हैं इस चीज़ से कि जो न्यूट्रिशन है एक जर्नी है, लाइक अ चाइल्डहुड टिल जेरियाट्रिक एज। क्योंकि हर स्टेज पे, हर फेज़ पे अपना एक अलग रिक्वायरमेंट होता है, बॉडी की एक अलग नीड होती है। सो दिस इज़ अ जर्नी, राइट। उस जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, राइट। सो दिस इज़ अ कंप्लीट जर्नी एंड इट इज़ आवर ड्यूटी हाउ कैन वी मेक दिस जर्नी वेरी स्मूथ। क्योंकि हर एक पॉइंट पे बीइंग अ इन्फेंट, फिर उसके बाद हम टॉडलर्स होते हैं, इन्फेंट, एडोलेसेंट, अडल्ट, प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग विमेन, जेरियाट्रिक, ओल्ड एज। सो हर स्टेज पे हमारी नीड्स, हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी क्वांटिटी, हमारी क्वालिटी, हर चीज़ बदलती जाती है। सो न्यूट्रिशन इज़ अ कंप्लीट जर्नी ऑफ लाइफ, राइट। सो बॉडीज ऑर्गन एंड टिश्यू नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू वर्क इफेक्टिवली। आँखों को एक अलग विटामिन चाहिए, बोन्स को एक अलग विटामिन चाहिए, हमें मसल्स बनानी है, वी नीड समथिंग एल्स। सो दिस इज़ अ होलसम अप्रोच ऑफ द डाइट। एक चीज़ या एक सुपर फूड कोई नहीं होता है, राइट। योर प्लेट शुड हैव एवरीथिंग। सिर्फ दाल रोटी से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ सब्जी से भी खा के काम नहीं चलेगा। सो योर प्लेट शुड हैव अ बैलेंस प्लेट। उसमें आपका डेयरी प्रोडक्ट्स भी होना चाहिए, लाइक प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, कार्ब्स होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए। फैट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बॉडी में ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं विच इज़ फैट सॉल्युबल।
ऐसे विटामिन हैं विच इज़ फैट सॉल्युबल. सो ज़ीरो फैट डाइट इज़ ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर अस. वी नीड सम अमाउंट ऑफ द फैट फ्रॉम द बॉडी. सो लाइक विटामिन A, D, E, K, दीज आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स. दैट इज़ नॉट अ वाटर सॉल्युबल. और अगर बॉडी में फैट परसेंटेज नहीं है, हमारा डाइटरी इंटेक नहीं है, सो डेफिनेटली दैट फैट सॉल्युबल विटामिन्स विल नॉट एब्जॉर्ब इन द बॉडी. अब मैं फैट की बात कर रही हूँ, आप लोग कह रहे बीइंग अ डाइटिशियन यू आर टॉकिंग अबाउट द फैट. लेकिन हमें फ़ैट खाना है, हमें डालडा खाना है, या हमें सनफ्लावर ऑयल या मस्टर्ड ऑयल खाना है, हमें मार्जिनस खाने हैं, या हमें ट्रांस फैट खाना है, या हमें वेजिटेबल ऑयल्स लेना है, तो हमें वहाँ पे बहुत क्लियर होना पड़ेगा. योर फर्स्ट चॉइस शुड बी वेजिटेबल ऑयल्स. जितने भी हाइड्रोजनेटेड फैट हैं या ट्रांस फैट हैं जो हमारे सारे प्रोसेस्ड फूड में होते हैं, वी शुड अवॉइड दैट. हमें सीड्स लेना है, नट्स लेना है, दीज आर द गुड फैट इन द डाइट. ओके, सो दिस इज़ द फूड पिरामिड. अगर आप इस पिरामिड को देख रहे होंगे तो द फर्स्ट लार्ज पोर्शन इज ऑफ सीरियल्स एंड मिलेट्स. दैट इज़ द मेन हाउस ऑफ योर एनर्जी, राइट. Now this year India, the whole nation, the whole world is celebrating millet year. आपने देखा होगा G20 में भी they all whosoever is come to India to attend the G20, they have millet breakfast, millet lunch and millet dinner, because India is promoting the millets, right. So millet definitely उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट वेदर इट इज़ थायमिन, राइबोफ्लेविन, आयरन, कैल्शियम, दैट इज़ रिच इन. लेकिन वो थोड़ा सा, क्योंकि ये पहले अगर हम बहुत एंशिएंट टाइम की बात करें, दैट इज़ आवर मेन फूड, स्टेपल फूड मिलेट्स. लेकिन वीट ने उसको ऐसा ओवर पावर किया कि हम शायद मिलेट्स के नाम भी नहीं जानते आज के टाइम पे. बट मिलेट्स आर लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो इन कार्बोहाइड्रेट, हाई इन फाइबर एंड रिच इन मिनरल्स. तो आप कोशिश करें ये टॉक सुनने के बाद घर जाके एटलीस्ट ट्राई करें कि दिन में एक मिलेट आपका रेसिपी होना चाहिए. मिलेट अगर मैं हिंदी में बात करूं, बताऊं, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, दीज आर द मिलेट्स, राइट. बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की रोटी लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन आजकल वो आउट ऑफ द फैशन है. लेकिन हम कहीं चौकी धानी घूमने जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, तो वहाँ पे बाजरे की रोटी हम ज़रूर खाते हैं, लेकिन हम उसको अपनी डेली लाइफ में नहीं लाते हैं, क्योंकि हमें शायद उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है. हमें लगता है वो एक रीजन का फूड है, वो हरियाणा का फूड है, ये वो मक्के की रोटी पंजाब का फूड है. नहीं, वो इंडिया का फूड है. देखिए, बनाना तो हम आजकल पिज़्ज़ा सीख रहे बनाना, पास्ता सीख रहे बनाना. लॉकडाउन में तो हमने पता नहीं कितनी कुकरी को चीज़ें यूट्यूब पे देख देख के बना ली, तो व्हाई नॉट बाजरा रोटी, राइट. सो दिस इज़, ये हमारी प्रेफरेंस है कि हमने शायद उसको नहीं दिया. केक बनाना सब सीख रहे हैं, पिज़्ज़ा बनाना सब सीख रहे हैं, है ना, लेकिन बाजरे की रोटी बनाना कोई नहीं सीख, बिकॉज दैट इज़ आउटडेटेड. दैट इज़ कॉल्ड लाइफस्टाइल. हम अपने ओरिजिन को छोड़ के कहीं और चले गए हैं. दैट इज़ कॉल्ड लाइफस्टाइल. इंडिया अपना खाना भूल गया है, इंडिया अपना खाना बिल्कुल भूल गया है. लेकिन बाहर की चीज़ों को हमने, और बाहर के लोग आके हमारी चीज़ को अडेप्ट करके जा रहे हैं. सो G20 इज़ अ वेरी बिग एग्जाम्पल टू यू गाइज कि उन्होंने आके क्या खाया है. उन्होंने नॉनवेज नहीं खाया है, उन्होंने प्रोसेस्ड फूड नहीं खाया है. दैट इज़ ऑल मिलेट एंड इंडियन ग्रेन्स बेस्ड वेजिटेरियन डाइट दे हैव, राइट. सेकेंड हाउस की अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, द मेन सोर्स ऑफ फाइबर. Okay, and the third house is pulses and dairy, which helps to build which helps to include protein in your diet, and the very small window is of fats and sugar, right. So this is the food pyramid, और इसी तरीके से आपकी प्लेट होनी चाहिए. लेकिन when we are talking about the weight loss, तो जो बड़ा विंडो है सीरियल्स का, डेफिनेटली वो श्रिंक हो जाएगा और उसको ओवर पावर करेगा विंडो सेकेंड एंड विंडो थर्ड, फ्रूट्स एंड प्रोटीन्स, राइट. फैट फिर भी वहीं रहेगा. प्रिंसिपल ऑफ हेल्दी ईटिंग, वेराइटी इन डाइट, बैलेंस डाइट, मॉडरेशन एज थंब रूल. कोई भी चीज़ एक्सेस में परेशान करती है, वेदर इट इज डाइटिंग विल डेफिनेटली हार्म यू, ओवर ईटिंग definitely will harm you. So there always be a thin line between moderation and limitation, right. Regular meals, आप कभी मत सोचना ये कि मैंने ब्रेकफास्ट और लंच स्किप किया है, सो डिनर आई कैन हैव एनीथिंग.
वो बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। द मोर फ्रीक्वेंटली यू ईट योर मेटाबॉलिज्म विल एक्टिव। लेकिन हमारा बॉडी क्या है, इट्स अ मशीन। आपने उस मशीन को 10 घंटे कोई काम नहीं दिया, 11वें घंटे आपने 2 दिन का काम एक साथ दे दिया, तो या तो वो बैठ जाएगी या तो भी वो उठेगी नहीं। ठीक है, चल रहा है तो चल रहा है ना। वो खाना जो आपने रात को ओवर ईट किया है ना वो डाइजेस्ट होगा, ना उसके न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन होगी, बिकॉज योर मेटाबॉलिज्म इज सो स्लो। हम जिम भी जाते हैं तो पहले हम वार्म अप करते हैं ना, तो इसी तरीके से अपने मेटाबॉलिज्म को वार्म अप करना चाहिए, हमेशा उसको एक्टिव रखना चाहिए। आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, आपने लंच स्किप कर दिया, आप सीधा डिनर पे बैठे हैं, और क्या होता है, हमारी सेल्स जो है ना वो हमसे ज़्यादा चालाक होती हैं। आपने कभी पता नहीं आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है, जब आप बहुत लंबी फास्टिंग के बाद खाना खाते हैं तो सटाइटी थोड़ी देर के बाद आती है। पहले इनिशियली आप कितना खाते चले जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि आपके सेल्स को पता है कि ये तो फ्यूल देगा नहीं, पूरे दिन इसने मुझे ऐसे रखा है, पर बॉडी को तो उसने चलाना है ना, एनर्जी देनी है। फर्स्ट योर सेल्स विल स्टोर द फूड एंड देन आफ्टर इट विल गिव यू सटाइटी। उस कंडीशन में ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बॉडी को तो फ्यूल देना है भाई, उसने आपको चलाना है। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, यू विल ओवर ईट, और वो फिर खाना खाने के बाद हम रेस्ट में चले जाते हैं। तो BMR इज कन्वर्टिंग इनटू द रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, राइट। सो दैट फूड विल नॉट इजीली डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब। फिर सुबह उठोगे तो कहोगे आज बहुत हैवी लग रहा है और मैं आई फील कॉन्स्टिपेटेड, ब्लोटिंग हो रहा है, राइट। सो ट्राई टू हैव अर्ली एंड लाइट डिनर। योर ब्रेकफास्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट मील फॉर द डे एंड दैट इज़ अ वेरी रिसर्च एंड स्टडी बेस। योर ब्रेकफास्ट शुड बी हेल्दी नॉट हैवी। आप लंच छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई टू हैव योर ब्रेकफास्ट ऑन टाइम। नाश्ते का समय होता है, ऐसा नहीं कि हम 1 बजे उठ रहे हैं तो 1 बजे हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है। द आइडियल टाइम ऑफ द ब्रेकफास्ट इज़ शार्प 8 AM, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इधर उधर कर सकते हैं, 8:30, 9। सो बिफोर कमिंग टू द ऑफिस ट्राई टू हैव योर ब्रेकफास्ट, राइट। रेगुलर मील, ईट एंड बर्न, जैसे मैंने आपको बोला है, एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड एनर्जी इनटेक शुड बी इन अ बैलेंस मोड। खाए जा रहे हैं, वी आर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, वी ऑल आर सिटिंग हियर इज़ अ सेडेंट्री वर्कर। सेडेंट्री वर्कर का मतलब ये होता है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एनर्जी नहीं चाहिए होती है। वी आर वर्किंग विद द मोर ऑफ ब्रेन मेंटल एनर्जी, राइट। सो खाते रहना है, बैठे रहना है, खाते रहना है। एज वी आर सेडेंट्री वर्कर, तो हमारा इंटेक और एक्सपेंडिचर एंड इंटेक शुड बी इन अ बैलेंस मोड, राइट। कार्बोहाइड्रेट, जैसे अभी हमने बात किया है, सो कार्बोहाइड्रेट इज़ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। सो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 कैलोरीज देता है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल गिव अस 4 कैलोरीज, और पूरे दिन का जो हमारा कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट होता है दैट इज़ ऑफ 80 to 90 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर द डे, बिकॉज मेन एनर्जी, वी ऑल आर सेडेंट्री वर्कर्स, हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है फॉर द डे इज़ नॉट मोर देन 1400 कैलोरीज, अनटिल अनलेस कोई विगरस जिम ना कर रहा हो, इंटेंस जिम ना कर रहा हो। अगर आपका सिर्फ नॉर्मल वॉक है या कुछ है एंड और वो भी नहीं है, सो 1200 to 1400 कैलोरीज से आपको ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। एंड 1 ग्राम प्रोटीन पर kg बॉडी वेट। पर ऐसा नहीं है कि एक वन इंडिविजुअल इज़ हैविंग 80 kgs ऑफ वेट, बट दैट इज़ नॉट हिज आइडियल बॉडी वेट, तो 80 ग्राम्स की प्रोटीन ज़रूरत उसको नहीं है। फर्स्ट वी शुड कैलकुलेट द आइडियल बॉडी वेट, उसका एक्चुअली आइडियल बॉडी वेट क्या होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड टू मॉडिफाई द रिक्वायरमेंट्स फॉर द डे, राइट। So preferable carbohydrate sources should be wheat flour, multigrain, although I am not in a favor of breads, oats, brown rice, fruits with peels on. फैशन है, एप्पल खाएंगे छील के खाएंगे, आलमंड्स खाएंगे सोक करेंगे छिलका फेंक देंगे, क्यों फेंक देंगे। जूसेस प्रेफर करेंगे, डेंचर्स दिए हैं गॉड ने, चबाइए अच्छे से। जब जेरियाट्रिक एज में चले जाएंगे तो छोड़ दीजिए चबाना, तब वहाँ जूसेस ले लीजिए। टिल द टाइम यू हैव अ गुड डेंचर्स, ट्राई टू हैव फ्रूट्स। लेकिन आजकल हम शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। मैं बहुत सारे पेशेंट्स से अपने रिकॉल लेती हूँ कि आप फ्रूट्स नहीं खाते, मैम चबाए कौन, तो दांत किस लिए हैं, कौन चबाए। सो आप जूसेस पीते हो, आपने चीनी तो ले ली उसकी, यू हैव टेकन आउट द शुगर, बट यू हैव थ्रोन द फाइबर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
बीइंग एन यंगस्टर्स ट्राई टू फोकस ऑन फ्रूट्स, और बॉयज़ के लिए फ्रूट्स में सिर्फ एक ही चीज़ है, बनाना, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, ठीक है। सो बनाना के आगे भी बहुत अच्छी चीज़ है, और बनाना भी वो तब खाएंगे जब जिम जाएंगे, अदरवाइज शायद वो भी लिस्ट में नहीं है. इफ़ आई एम रॉन्ग यू कैन से इट. So the next macronutrient is protein, and that is also will give the same calories, 4 calories per gram. So animal protein will be your eggs, and prefer to have egg whites. Fish, poultry, try to have lean meats, chicken, fish, egg whites are okay. Try to avoid red meats and organ meats. Dairy products should be low fat dairies. Plant proteins, pulses, soy products and unsalted nuts. Fats will give you the 9 calories, okay. So 1 gram fat will give you 9 calories. तो सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है कैलोरीज? फैट, इसीलिए उसकी विंडो सबसे छोटी है, राइट. शुगर उससे ज़्यादा देगी. So fat options will be essential, and that is essential in the diet. So that is olive oil, bran oil, canola oil. Very frequent asked question, कौन सा तेल इस्तेमाल करें? Which oil should I have to use? Every oil is having their own fatty acid property. Mustard है, sunflower है, olive है, every oil is having their own fatty acid property. तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आजकल एक और फैशन है ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल में कुकिंग कभी नहीं होती, और इंडियन कुकिंग तो बिल्कुल नहीं होती, बिकॉज वी आर यूजिंग तड़का, ठीक है. आपने स्मोक लेवल पे लेके आए, वो कहीं ना कहीं आप रेंसिडिटी लेवल पे ले आए ऑलिव ऑयल को, राइट. सो ऑलिव ऑयल इज़ नॉट एट ऑल एप्लीकेबल फॉर इंडियन कुकिंग, वेदर इट इज़ एक्स्ट्रा वर्जिन और कोई भी बात कर लो आप. दैट इज़ यूज फॉर ड्रेसिंग्स. आप स्टफ रोटी खा रहे हो, इंस्टेड ऑफ ग्रीजिंग बटर ऑन इट, ट्राई टू ग्रीज ऑलिव ऑयल ऑन इट. सैलड्स की ड्रेसिंग्स में यूज़ हो सकता है ऑलिव ऑयल, राइट. पर इंडियन कुकिंग के लिए मस्टर्ड, सनफ्लावर, सोयाबीन, बिकॉज some may have mufa, some may have pufa, some may have combination of these. Bran oil, blends, nowadays Saffola is coming with the, हाँ लोग कहते हैं Saffola ले या Fortune ले, but you are talking about the brands. आप Saffola का भी सरसों का तेल लेके आओगे, आप Fortune का भी सरसों का तेल लेके आओगे. So you should change the seeds. ब्रांड आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. You should change the seeds. Use the combination of oil. लंच, ब्रेकफास्ट, आपने ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा ऑलिव ले लिया या सनफ्लावर यूज़ कर लिया, लंच मस्टर्ड में कुक कर लो. इस तरीके से ये वेट नहीं करना पड़ेगा, अच्छा इस महीने तो हम अपना मस्टर्ड का पूरा स्टॉक ले आए, नेक्स्ट मंथ हम किसी और ऑयल पे स्विच कर लेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक महीने बॉडी को तो आपने उस फैटी एसिड से तो बिल्कुल अलग रखा है ना. सो ट्राई टू यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल, दैट विल रियली हेल्प यू, राइट. घी इज़ अ गुड फैट, although it is a saturated fat, but it is good. Should be in very limitations. 1 or 2 teaspoon of ghee for the day is very much okay. Well, that is saturated. Definitely that will lead definitely leave some cholesterol in your vessels. So it is recommended, but not in free hand. 1 teaspoon of ghee or butter is recommended for the day. 1 or 2, not much. Even lactating mother should have ghee, because that is good fat for baby, right? Excuse me. Calorie calculations: carbohydrate 1 gram 4 calories, protein 1 gram 4 calories, fat 1 gram 9 calories, alcohol 1 ml 7 calories. And let's talk about the vitamins and minerals. The body cannot manufacture or synthesize vitamins and minerals. So they must have supplied by the diet. They are necessary for growth, vitality, health, general well-being, and for the prevention and cure of many health problems and diseases. Thank you. So let's talk about the iron. And the function of the iron is help to build hemoglobin, which is the oxygen carrying part of your body, red blood cells. Food sources: beans, green leafy vegetables, बाजरा, amaranth flour, apple. ठीक है. अगर हम बात करते हैं आयरन की, राइट, आयरन का ऐसा को फैक्टर कौन सा है जो हमको बहुत ज़रूरी है व्हेन वी आर टेकिंग आयरन, बगैर उसके एब्जॉर्प्शन विल नॉट हैपन. यस, आई एग्री विद द फॉलिक एसिड. व्हाट एल्स?
because without that cofactor your iron will not absorb in the body, and that is calcium. और एक ऐसी चीज़ जिसको हमें आयरन के साथ नहीं लेना है, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर टू एब्जॉर्ब द आयरन. what is that? Tannin. चाय. Eating मेथी पराठा with cup of chai is wasting your nutrient, right? So always have your tea before or after meal. Do not have your tea with your nutritious food. Sprouts खा रहे हैं, बहुत खुश हैं, I'm eating sprouts, साथ में कॉफ़ी पी रहे हैं. So tea and coffee is having tannin, which is a very strong inhibitor. वो आपके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं होने देना बॉडी में, राइट? Potassium helps regulate fluid balance in the body, assist with the normal functioning of muscle and nerves. Food sources are bananas, all fruits having, even all fruits and vegetables is having potassium. The main sources of banana, citrus fruits, coconut water. Vitamin B complex. It is important to ensure that the body cells are functioning properly. Food sources are seeds, fortified food, grains, legumes. B complex vitamins जो हैं that is mainly available with the millets and cereals, right? आपको बहुत ज़्यादा डाइटरी सोर्सेज पे तो नहीं मिलेंगे, इस वजह से वी आर गोइंग फॉर द fortified cereals as well, which is fortified with the B complex vitamins. Vitamin C fights against infection. So vitamin C act as an anti-inflammatory in the body, right? जब कोविड आया था तो सबके पॉकेट में डेफिनेटली लिम्सी होती होगी, विटामिन सी, राइट? वाई? हल्दी दूध पीते थे, वाई? बिकॉज दैट इज़ अ वेरी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड, दैट इज़ अ प्रोटेक्टिव फूड. Okay, so fights against infection, maintenance healthy gums, strengthening and maintains blood vessel structure. Food sources are citrus fruits, tomatoes, leafy vegetables. Vitamin D promote the development of healthy bones and teeth. Food sources are eggs, salmon, fortified. Vitamin D is mainly come from the seafoods, fatty fish or sun exposure. When we are talking about the vitamin D, आजकल सब बोलते हैं मेरा विटामिन डी कम है, मेरा B12 कम है, क्यों है? हैव यू हर्ड अबाउट द हैप्पी हार्मोन्स एंड सैड हार्मोन्स? सुना है आपने? जब हम खुश होते हैं तो एक अलग तरीके का हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज़ डोपामाइन एंड सेरोटोनिन, राइट? और सैड हार्मोन कौन सा है? Exactly. So cortisol, and this vitamin D is very much associated with that releasing of happy hormones. अगर आपका विटामिन डी कम है, so definitely you must be in depression. आपको मूड स्विंग्स होंगे, आपका मूड अच्छा नहीं होगा, आपको स्लीपलेस नाइट्स, साउंड स्लीप नहीं होगा. So and the main factor to maintain your vitamin D, which is very important, अगर आपको weight loss करना है, so this vitamin D should be on a normal levels, right? Calcium needs adequate intake of calcium. Function of calcium helps build strong bones and teeth, regulate muscle functioning. अच्छा, कैल्शियम का को-फैक्टर क्या है? टू एब्जॉर्ब दैट कैल्शियम व्हाट वी नीड. दूध हम सब बहुत पीते हैं, बच्चों को भी मिल्क करते हैं, लेकिन मिल्क इनकम्प्लीट है विदाउट देयर बेस्ट फ्रेंड. एंड व्हाट इज इट? अभी हमने पहले बात करी थी इसकी. यस, without vitamin D, calcium and phosphorus will not absorb in the body. इसीलिए न्यू बॉर्न्स जो बेबीज़ होते हैं, डे 1 से वी आर स्टार्टिंग टू गिविंग देम विटामिन डी ड्रॉप्स, बिकॉज मदर फीड में सब कुछ है, कैल्शियम मिल रहा है उसको, लेकिन वो कैल्शियम एब्जॉर्ब कैसे होगा? इसीलिए रिकेट्स एंड एवरीथिंग इज़ वेरी कॉमन अर्लियर डेज, बट नाउ अ डेज डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड विटामिन डी very early after the birth, right? So it is very important to take vitamin D along with the calcium. So dietary fibers, बोलते हैं high fiber diet, high fiber diet, high fiber diet. What is actually high fiber diet? फाइबर के नाम पे सिर्फ हमारे पास एक चीज़ ध्यान में आता है, fruits and veggies. No, dietary fibers are available in so many forms. The types of the fiber is soluble fibers and insoluble fibers, right? Insoluble fibers का main sources है fruits, veggies, sprouts, legumes, and soluble fibers का जो sources है that is your lentils, your beans, your dairy products. These are the
ओट्स, दीज आर द सॉल्युबल फाइबर, और दोनों का काम बिल्कुल अलग है. Insoluble fibers will create a bulk to your gut that will help you to keep your gut healthy and to rid off from the constipation, right? लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इंक्रीज फाइबर इनटेक में रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेफिनेटली GI ट्रैक डिजीज, इंडाइजेशन, ये सारा चीज़ आपका रिड ऑफ होगा. डायबिटीज़, बिकॉज डायबिटीज़ डाइट प्लान इज मेनली बेस्ड ऑन हाई फाइबर एंड प्रोटीन डाइट एंड लो इन कार्बोहाइड्रेट. सेवरल टाइप्स ऑफ कैंसर, recommended fiber is 20 to 30 gram per day. Best sources are fruits, veggies, whole grains, cereals, beans, nuts, rice, seeds, and adequate water intake is important. क्या होता है कि जब हम सिर्फ फाइबर लेंगे और वाटर इनटेक हमारा एडिक्वेट नहीं होगा, that may lead to constipation because that fiber will absorb more of the water from your gut, right? So when you are taking high fiber diet, make sure hydration और water intake is equally important. Otherwise वो जिस पर्पस के लिए हम कर रहे हैं वो उल्टा हो जाएगा. हम कॉन्स्टिपेशन को या गट अच्छा रखने के लिए हम फाइबर ले रहे हैं बट वी आर नॉट टेकिंग एडिक्वेट वाटर, तो उसमें क्या होगा कि अगेन यू विल बिकम कॉन्स्टिपेटेड, सिवियर कॉन्स्टिपेटेड. तो वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए. एंड व्हाट इज द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द डे? एनी आइडिया? 35 ml of water per kg body weight, right? 35 ml of water per kg body weight, but it differs, it varies. A person is going to the gym and doing intense exercise, तो वो 35 ml उसके लिए फिर एप्लीकेबल नहीं है, वो डिहाइड्रेशन में चला जाएगा, राइट? एक हार्ट पेशेंट है, उसका इजैकुएशन फ्रैक्शन, द कैपेसिटी ऑफ पंपिंग द ब्लड इज जस्ट 25 to 30%. हम वहाँ पे फ्लूइड लोड ओवर नहीं कर सकते, राइट? सो इफ अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल 35 ml of water per kg body weight, you can increase it as per your activity, right? But if so many morbidity associated with that, like your kidney patient, diabetic patient, if there is a retention of water in the body or liver cirrhosis or decompensated liver, then definitely fluid intake should be less as per the requirement and as per the disease, right? Fruits and vegetables, eat at least 6 to 7 portions of every day, जो कि नहीं होता है. मेनली डाइट को हमारे ओवर, अभी मैं आई ऑब्जर्व दैट पीपल आर ईटिंग दैट कप मैगीज एंड यू नो सैंडविचेज एंड ऑल, क्योंकि आप लोग अट्रैक्ट ही उसी से होते हैं. वो दे देगा फ्रूट काट के, बोलोगे क्या दे दिया यार तूने, राइट? कीप हाइड्रेटेड. अगर मैं हाइड्रेशन की बात कर रही हूँ तो जूसेस उसमें कहीं नहीं है, कोक्स उसमें कहीं नहीं है, एरिएटेड ड्रिंक्स विल नॉट एग्जिस्ट. डाइटिशियन ने बोला हाइड्रेट रखो, लिक्विड पियो, कोक की बॉटल पिए जा रहे हैं, नो. पहला प्रेफरेंस शुड बी वाटर. नहीं पिया जा रहा है तो बाकी के ऑप्शंस आई हैव टोल्ड यू. So prefer more non-aerated drinks instead of aerated drinks. Have you noticed that when you are eating anything junk, whether it is chola bhatura or noodles or chicken preparation, can you eat with the water? खा सकते हो कितना? You cannot eat. But when you are eating chola bhatura with a bottle of coke, आप 2 प्लेट भी खा लोगे. कैसे? इसीलिए हर काउंटर पे चाइनीज़ के साथ कोक, स्प्राइट बॉटल्स मिलेगी. छोले भटूरे के साथ कोक के बगैर तो वो नीचे ही नहीं जाएगा, बिकॉज वाटर विल ब्लोट यू. एंड एरिएटेड ड्रिंक्स क्या करेंगे? स्टमक को स्पैंड करेंगे, वो बर्प आएगी, स्पैंडेशन होगा आपके स्टमक का, फूड विल सेटल, राइट? और आपको और स्पेस मिलेगा उस पेट में चीज़ें बढ़ने का, क्योंकि स्टमक के पाउच को वो स्पैंड करती है, right? So always keep in mind, whenever you are eating with the soft drinks, you are prone to have more food. पानी के साथ खा के दिखाइए, चैलेंज यू. नहीं खा पाएंगे बिकॉज वाटर विल गिव यू, वाटर से क्या होता है, ब्लोटिंग हो जाएगी, फुलनेस हो जाएगी, आप नहीं खा पाओगे. इसीलिए ओवर ईटिंग विद द एरिएटेड ड्रिंक्स इज वेरी कॉमन, राइट? एंड दिस हाउ टू कंट्रोल एंड मेजर योर पोर्शन साइज. A serving of proteins, a full palm, right?
सबसे ज़्यादा स्पेस हमने दिया है. सर्विंग ऑफ वेजिटेबल्स, अ फीस्ट. अ सर्विंग ऑफ फैट, जस्ट थम. अ सर्विंग ऑफ कार्ब्स, दिस मच. तो सबसे ज़्यादा स्पेस हमने यहाँ पे किसको दिया है? प्रोटीन्स को. And just talk about the obesity. What is obesity? Overweight and obesity are defined as abnormal or excessive fat accumulation that present a risk of health. So how to calculate a BMI? I don't want to go into calculation of BMI. Types of obesities are apple android and pear gynoid. So apple android obesities are more common in males and pear gynoid obesity are more common in females. तो फीमेल्स में सबसे ज़्यादा फैट बटक्स पे, थाइस पे आपने नोटिस किया होगा. एंड द मेन सबसे ज़्यादा फैट होता है टमी पे, पेट पे, राइट, विच इज़ मोर डेंजरस. एप्पल एंड्रॉयड इज़ मोर डेंजरस देन पियर गाइनॉइड. पियर गाइनॉइड में विमेंस आर फेसिंग नी पेन, बैक पेन, यू नो, जॉइंट, मेनली लोअर बैक पेन, राइट. एप्पल एंड्रॉयड males are facing more of hypertension, BP issues, breathlessness, right. So this is the difference between apple android and pear gynoid, right. So health heart lifestyle program should be, education is very important, right. Test not guess. अच्छा तेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, तेरा ये कम होएगा. अच्छा तेरे को हेयर फॉल हो रहा है, ये कम होएगा. नो, guessing is not required. Go for a particular test for the same, right. तुक्के पे काम नहीं चल सकता है. पर्सनलाइज न्यूट्रिशन प्लान. बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जो हम पेशेंट को डाइट प्लान दे रहे होते हो तो द अटेंडेंट्स वाज लाइक, कैन वी फॉलो द सेम? नो. क्या डॉक्टर एक जैसी मेडिसिन सबको देता है? नहीं. वी शुड हैव आवर ओन कस्टमाइज डाइट प्लान एज पर द बॉडीज रिक्वायरमेंट. हो सकता है किसी को डाइट प्लान की ज़रूरत ही ना हो, क्यों फॉलो करना है? ब्लाइंडली एनीथिंग विल हार्म यू, right. Half cooked knowledge is very dangerous. Personalized fitness plan, stress management, very important. Sound sleep, supplements, if I'm talking about that is mainly multivitamins and all, and that is multivitamins को do not take multivitamin very granted. मैं multivitamin, आजकल इतने ads आ रहे हैं, everybody is starting taking multivitamins, but do not take multivitamin in granted. If your levels are normal, why you need to take multivitamins? I don't think so, right. So multivitamins को कभी भी granted ना लें. Yes. जो जिम में जाते हैं वो प्रोटीन, उस पे भी मैं आऊँगी. कोचिंग, राइट. जिम वाले जो सप्लीमेंट्स देते हैं, दैट इज़ मोर ऑफ क्राटिनिन एंड यू नो स्टीरॉइड बेस्ड. एंड कार्टिनिन डेफिनेटली विल लीड वाटर रिटेंशन. बॉडी फूल जाती है, आपको लगता है आप मोटे हो रहे हैं. स्टीरॉइड्स बॉडी को स्वेल कर देती है, आपको लग रहा है मसल्स बन रही है. नो, दैट इज़ वेरी हार्मफुल एंड दैट विल डेफिनेटली मेक इफेक्ट्स ऑन योर किडनीज. आप सप्लीमेंट करिए, आपको जस्ट गो थ्रू द डाइट यू आर ईटिंग, जस्ट रिकॉल योर डाइट, कितना प्रोटीन मैं ले रहा हूँ, कितना मैं डेफिशिएंट हूँ और मुझे कौन सा प्रोटीन. मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं लाइक नेस्ले, एबट, दीज आर द इंटरनेशनल ब्रांड्स एंड देयर प्रोडक्ट्स आर वेरी स्टडी एंड रिसर्च बेस्ड. जिम वाले ने वो काला डब्बा दे दिया, हमने लेना शुरू कर दिया, हमें नहीं पता है उसमें क्या है, व्हाट ऑल आर द कंपोनेंट्स. और कभी कभी क्या होता है ना, एज अ लेमैन कुछ सॉल्ट्स या कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे साइंटिफिक लैंग्वेजेस में लिखे होते हैं, कभी कभी हम भी शायद नहीं पढ़ पाते. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द कंटेंट केयरफुली, राइट. ब्लाइंडली किसी, जितने भी बड़े बड़े जिम हैं आप, वो दे विल फोर्स यू टू हैव देयर ओन प्रोडक्ट्स. बाहर से मत लीजिए, यहाँ से लीजिए. But you should always be careful. We have seen patients are dying because of that, you know, taking that gym ka protein and all, right. So key takeaways are variety and portion control, have meals on time, have meals in relaxed environment. आप कितना भी lavish खाना, कितना भी nutritious खाना खा रहे हैं, but you are eating food with lots of stress, that is waste. So always try to have your meal in a very calm situation, calm, you know, environment. फ़ोन बज रहा है, बार बार फ़ोन उठा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप खा क्या रहे हैं. वो सेंस करना कि what all you are eating, that is very important.
Is it talking while eating or वी शुड अवॉइड टॉकिंग वाइल ईटिंग. इवन हम बेबीज़ को भी बोलते हैं ना, आजकल बेबीज़ का भी स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, राइट? खाना नहीं खाएंगे जब तक स्क्रीन नहीं होगा. बच्चे को पता ही नहीं आप मुंह में क्या भरे जा रहे हो. ही इज़ नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हिज प्लेट एंड दैट इज़ वेरी रॉन्ग. हैव अ हाई फाइबर डाइट, टेक प्लेंटी ऑफ वाटर एज आई टोल्ड यू बिफोर. सो नाउ इट्स टाइम टू चेक योर न्यूट्रिशन नॉलेज. मैंने बहुत सारा ज्ञान दिया है, अब उस ज्ञान में से थोड़ा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं. आर यू रेडी फॉर द सेम? Yes. One question है मैडम. हाँ. ये coffee, right? You say excessive coffee is harmful. या So what do you mean by excessive? 2 cup is enough or 2 कप इज़ इनफ. हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में हम निकल के आ रहे हैं, वेंडिंग मशीन से कॉफ़ी ले रहे हैं, पी रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, पी रहे हैं. हाइपरटेंशन, अगर जिसको बीपी का प्रॉब्लम होता है उसको हम बोलते हैं ना कि जस्ट कट डाउन योर कैफीन इनटेक, राइट? कॉफ़ी इज़ गुड, full of antioxidant, but it should be in moderation. I told you earlier, moderation is very important, limitation is very important. Anything is in excess definitely will harm you. Okay, चाहे वो चाय हो, कॉफ़ी हो, कुछ भी हो. Excessive, हम एक्सरसाइज किए जा रहे हैं. Have you heard before so many celebrities are dying because of excessive exercise or workout. हर चीज़ का अपना एक लिमिट होता है. बॉडी का इंटेंस, बॉडी की कैपेसिटी को पहले रियलाइज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डाइटिशियन ने बोला या फिजिकल ट्रेनर ने बोला गो फॉर द वॉक, 2 साल से कभी नहीं किया. आज हम चले गए 4 किलोमीटर वॉक पे, अगले दिन हम 4 दिन उठ ही नहीं पाए, तो हम फिर घूम के वहीं चले आए. इट्स बेटर टू गो फॉर अ वॉक ओनली 10 मिनट्स. जस्ट फर्स्ट असेस योर स्ट्रेंथ. आप खड़े कहाँ हैं? आप सीधे 20 फीट के स्विमिंग पूल में जंप कर देंगे तो डेफिनेटली डूबेंगे. फर्स्ट असेस योर स्ट्रेंथ, वेयर यू आर. किसी ने एक दिन 10 मिनट्स के लिए जाइए, नेक्स्ट डे 15 मिनट्स के लिए जाइए, उस 15 मिनट्स को 2 दिन के लिए मेंटेन करिए, इंक्रीज इट बाय 20 मिनट्स. पहले अपने स्ट्रेंथ को असेस करें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 4 दिन नहीं गए घूम फिर के तो दैट इज़ अ विशियस साइकिल. जहाँ से शुरू किए थे यू हैव स्टैंडर्ड ओवर देयर ओनली. कुछ नहीं आगे पीछे हुआ, शरीर वैसे ही 4 साल से 5 साल से खेलना छोड़ दिया, एकदम से बैडमिंटन या क्रिकेट खेलने चले गए, वापस आके ऐसे लग रहा है किसी ने मुझे कितना मार दिया है. हाथ नहीं उठ रहा, पैर नहीं उठ रहा, क्योंकि मसल्स आर स्टिफ्ड. उनको रिलैक्स तो होने दो. वो भी सोच रहे होंगे आज इसको क्या हो गया, राइट? But one more question. So when we take lunch, right, we feel like having a small nap. So is it good to have a nap or is it good to have some walk? Because some people walk, some people. हाँ, तो दैट इज़ लाइफ स्टाइल. तो जो वॉक कर रहे हैं दे आर इंटेलिजेंट वन. जो नैप ले रहे हैं, जो सो रहा है वो कुछ खो ही रहा है. ठीक है. सो इट्स कार्बोनेटेड कैफिनेटेड ड्रिंक शुड बी इन. कार्बोनेटेड के लिए तो मैं कभी हाँ ही नहीं बोलूँगी. चाय के बगैर तो मैं भी नहीं रह सकती, तो मैं चाय को मना नहीं कर सकती. बगा अभी यार इंडियंस आँख ही नहीं खुलती चाय के बगैर. कुछ चीज़ें नेसेसिटी हो जाती हैं, छोड़ नहीं सकते हैं. एडिक्शन हो जाता है. चाय नहीं पिया, 11 बजे तक चाय, आज सुप्रिया अपना ब्रेकफास्ट करके नहीं आई, इसको हेडेक होने लग गया. ठीक है ना. सो फॉर समथिंग वी आर वेरी एडिक्टेड, राइट? तो कुछ चीज़ें छोड़ने, जैसे अल्कोहल विड्रॉल जब हम कराते हैं बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, पेशेंट की जान चली जाती है. तो एकदम से छुड़ाना किसी चीज़ की जिसको हमें आदत है, कोई ऐसी आदत जो आपके लाइफस्टाइल या आपके लाइफ स्टाइल को हैम्पर कर रही है, एकदम से ना छोड़ें. रिहैब में क्यों भेजा जाता है? बिकॉज दे कीप ऑन आई ऑन यू. धीरे धीरे किसी भी चीज़ का विड्रॉल सडन नहीं होना चाहिए. सडन जिमिंग भी नहीं होनी चाहिए, सडन छोड़ना भी नहीं चाहिए, सडन डाइट भी नहीं. ऑलवेज देयर शुड बी अ मेंटेनेंस इन बिटवीन, राइट? सो आई डोंट वांट टू टेक. I am not in a favor of energy drinks. Nowadays people are more focused on with the commercial products. अपनी अगर बस चले ना आप लोगों की, तो आपके प्लेट में प्रोटीन का सप्लीमेंट हो, मल्टीविटामिन की टैबलेट हो और एनर्जी ड्रिंक हो. Nowadays we are replacing our diet with the supplements and commercial products. I am not in a favor of the commercial product. Yes, if the commercial product is a very branded or study based or there is some researches going on, then it is okay. Red Bull पी रहे हो, क्या है वो? What is that? शुगर, एनर्जी. वो माइंड है, रेड बुल पीते ही बत्ती जल जाएगी हमारी. वो दिमाग का वहम है और वो होता भी है क्योंकि हमने दिमाग को उसी के हिसाब से ट्रेन किया हुआ है, राइट? सो सॉरी, ओके. सो शैल वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस? या, नॉट वेरी टफ.
The first question is, which food helps your muscle and is like tiny beans? Apple, lentils, tofu, corn. One by one, just raise your hand. Yeah, right. What's your name? Question number 2, what's a good snack to munch on? Chips, dry fruits and nuts, candy bars, none of the above. Question number 3, which bread is healthiest? White bread, millet bread, brown bread, atta bread, none. None. आपको क्या लगता है मिलेट ब्रेड सिर्फ मिलेट से बनी होगी? बगैर मैदा ऐड किए ना ग्लूटेन सॉफ्टनेस आ ही नहीं सकती है. ओके, सो ब्रेड्स, हमारे नाश्ता का प्लेट ना रोटी की जगह ब्रेड्स हो गई हैं. ब्रेड कभी कभी के लिए रखिए फॉर अ टेस्ट चेंज. ब्रेड को अपना मील मत बनाइए. राइट. Question number 4 is, which biscuits has no sugar in it and is healthiest? Marie, Ajwain, Nutri. कुछ तो सीख लिया. Question number 5, which is a good source of calcium? Ragi, makhana, seeds, all of the above, one by one. हाँ, पढ़ा है आपने स्लाइड्स अच्छे से. Which beverage is best to drink? सबको पता होगा. Cold drink, packed juices, milkshakes, fresh lemon water. Which food is good source of iron? Avocado, pomegranate, beetroot, all of the above? None of. You all are wrong. इसमें से किसी में आयरन नहीं है. हम रेड है तो खून बनाएगा. बीटरूट, when you are eating beetroot with beet green, not only, और बीटरूट भी अगर आप खा रहे हैं so you should go for at least 150 to more than 200 grams of beetroot. Then you will get a bit of iron. रिच सोर्स तो है ही नहीं. उसके साथ उसका ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो हम फेंक देते हैं लीव्स. यस, नहीं बढ़ता. किसने बोल दिया? कलर, मैंने बोला ना, वी आर अट्रैक्टेड विद द कलर्स. अभी तक हम यही हरा चीज़, लाल चीज़, आयरन, स्पेशली रेड आयरन, नो. राइट, ये मैथ है, यही क्लियर करना है. बिकॉज ऑफ दैट वी वॉन्ट टू एजुकेट यू. Which food has too much of salt? Fresh veggies, packed soups. ये आंसर मैंने पहले ही बता दिया था टॉक में. Whole grains and yogurt. Question number 9. Which food items increase platelet count? Kiwi, coconut water, goat milk, papaya leaves, none of the above. आप बहुत चालाक हैं. नो. प्लेटलेट बढ़ाने का, प्लेटलेट इज अ प्रोटीन, हीम एंड ग्लोबुलिन. राइट. प्लेटलेट बढ़ाने के लिए वी नीड टू हाइड्रेट द पेशेंट, वी नीड टू इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम. सो व्हाट वी नीड? हाइड्रेशन. कोकोनट वाटर तो मार्केट से खत्म हो गया. वन ऑफ माई पेशेंट इज सेइंग, या RBC, yes. WBC lifespan is 120 days. Yeah. White blood cell lifespan I don't know. What about platelets? Platelets will last only for several days. Okay. So you simply want to say that papaya leaves will not increase blood pressure? No. Has any studies come up with that papaya leaves? ये हमने डेंगू से शुरू किया था, जब चिकनगुनिया और डेंगू साथ में आया था. Then we have started with the giloy and papaya. And have they any studies behind that? No. We need to increase the blood volume of the patient. If blood volume will increase, definitely platelets will increase. और अगर बहुत ज़्यादा कम है, then we need to infuse the platelets or plasmas. Right? So coconut water, goat milk से कुछ नहीं होने वाला, नहीं तो डॉक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं थी. आप लोग खुद ही बढ़ा लेते अपनी प्लेट्स. Right? और one of my patient is saying coconut water is having lots of protein. मैंने कहा आप लोगों की वजह से मार्केट से कोकोनट वाटर गायब हो गया. 80-90 रुपीज़ ऑफ कॉस्ट फॉर अ 1 कोकोनट वाटर है. 4-5 एग्स, प्रोटीन तो मिलेगा. पानी पीने से अच्छा है. कोकोनट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन यू आर डिहाइड्रेटेड, यू आर सफरिंग फ्रॉम द GI ट्रैक इन्फेक्शन, यू हैविंग डायरिया. सो मिनरल्स को मेंटेन करने के लिए जैसे हम ORS पीते हैं, ग्लूकोन-डी पीते हैं, वहाँ पे आप नारियल पानी को स्पेस दे सकते हैं. और कोकोनट वाटर इज एक्ट एज अ नेचुरल डायूरेटिक. व्हेन यू आर डीलिंग विद द UTIs एंड ऑल, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, देन यू कैन गो फॉर द कोकोनट वाटर. दैट इज अ नेचुरल डायूरेटिक्स. राइट.
The last question is, Google it simply says, furthermore, papaya leaves extract contains bioactive compounds which help in increasing production of इसलिए मैं गूगल नॉलेज पे बिलीव नहीं करती. We are not come up with that person don't trust his whatever his father is saying. I don't trust Google. Yeah, that is very true because we haven't have any. I think Supriya, do we have any studies on papaya leaves? रामदेव बाबा जी गिलो की टैबलेट्स बना के बैठे हैं. Do they have any studies? क्या उन्होंने किया है किसी ग्रुप पे स्टडी? ह्यूमंस पे या एनिमल्स पे किसी पे स्टडी किया है? मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ. मे बी बिकॉज ऑफ दे हैव सम आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज एंड समथिंग. आई एम नॉट इन टोटली अगेंस्ट ऑफ ऑल दी स्टफ, लेकिन ब्लाइंडली आप उसको नहीं दे. पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड अटेंडेंट आर ब्रिंगिंग दैट गोट मिल्क, पिला दो, प्लेटलेट बढ़ जाएगा. तो डॉक्टर क्यों अपना मत्था फोड़ रहा है इधर उधर ना, कि उसको प्लेटलेट्स चढ़ा रहा है, प्लाज्मा चढ़ा रहा है, आईवी दे रहा है, हाइड्रेट कर रहा है. वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? गोट मिल्क ना हम आईवी में डाल के चढ़ा दें, उसको बढ़ जाएगी प्लेटलेट. सो एनी रॉ अनकुक्ड नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, राइट? How can you stay healthy and increase immunity? Great. कुछ तो सीखा है आज हमने. Thank you so much. I think it is not a boring session. Okay. So I want to invite Mr. Hanish. Hi. Yes, ma'am. Yeah. Please come. Thank you guys. My name is Anish and thank you Dr. Nidhi for such inspiring words, and I hope we all learned something today. This event basically we actually we are inaugurating our new app which is due for launch in a couple of days. So that is why we had this function today, session by Dr. Nidhi Singh. I would like to thank the efforts of all those people who came forward for making this program a great success. This event was exclusively hosted by our company Credester, and we are basically into ICU. We are into healthcare services, and we are into ICU outsourcing, ICU management, and emergency services management for various hospitals. I'm so sorry. I'll just keep it. So we are in the process of launching our own app, which is going to be one-time solution for all your healthcare needs. So that starts with doctor appointment to pharmacy to even assistant in hospitalization. We'll have some plans for hospitals as well as individual patients as well. So we wanted to showcase our services and our product to you, and I hope we all learned something today. Dr. Nidhi and Dr. Supriya, along with other doctor who's joining us, they will be giving individual sessions for all your dieting needs. Everything is there outside. Our nurses will assist you in that. There are snacks available. Everybody is more than welcome to join. Thank you so much.